So it is the idea is like I wanted to talk about the bank nifty or nifty, both the like indices. See, this is like I wanted to discuss few things about yes, my view which I had shared yesterday and the move which we got today. Okay, now this will be a discussion about how to use those views actually and how you can profit from that view. Okay, I traded based on that view only, and like in my group, in my whole handholding group of this month's webinar, I know ki people have made good money, but I wanted to discuss this with everyone. Okay, I think because we were not like we were expecting anything, any kind of gap up may happen. I had like discussed in that video. Okay, so let me go to the PPT. I wanted to share a few things like how can you like utilize your views in the real market, okay, in the live market. Basically, to make a view is a very easy thing. Okay, in you can just open your Twitter and you'll be able to see ki everybody is giving some or other views of about market or like that. But the thing is ki your view should be able to make money for you. That's the point here, no? So let's start that. Okay, and so the idea was, okay, let me like take you to the chart of Bank Nifty. Okay, so the idea till yesterday was I was expecting the those who have attended yesterday's session maybe knowing this. I was expecting the Bank Nifty to see. I had not predicted anything about the opening. Okay, I had given one scenario. If the opening is flat, okay, then it may go anywhere. And I had not predicted about like gap up or gap down opening because I was of the view that the US market and FOMC meeting will affect this like very badly. It may open very gap up or gap down. Okay, but the thing which I had told was the most important thing was we will be getting our like closing of Bank Nifty of this expiry will be at around like 38K or or above of 37,500. Okay, this was the level I was talking about. Okay, now once you know, see, if you have this kind of level in back of your mind, then it's it helps. How? Let me tell you guys see what happens whenever you are trading Bank Nifty or Nifty. Okay, this discussion is specifically for these two indices. Okay, I'll repeat it in Hindi also, but let's see what happens. Ki expiry ke din, okay, on the day of expiry, this is the most important thing. Ki what is the position of big players? Okay, that is the most important thing you have to look about. Okay, you don't have to look about like what is the Dow doing, what is the like Nasdaq and all. Okay, they may affect the opening, but the rest of the day is for us. Okay, and you don't have to worry about like result or budget or anything. Okay, the expiry is for like on the day of expiry. What does the big player want? They want key their position which they are carrying from like since like 1 month, 2 months, 3 months. Okay, it may be because this was a monthly expiry of January, so they may have made their position from November itself. Okay, because on the like month of November also you can buy the options of January, so there must be someone who is willing to sell that, and the big players they sell their position in advance, much advance. Okay, I'm not talking about retail traders here, I'm talking about the big players, big operators like that. Okay, FII, like that. So the expiry day is for like exiting their position. They want to exit their position in maximum profit. Okay, now what happened ki yesterday also I told about this thing ki Bank Nifty fell down like this, and sorry about that, Bank Nifty fell down like this. Okay, from here to here. Okay, now next day immediately after that it reverted, making a double bottom and went up like that. So it was a clear positioning. There are like both kind of forces working tirelessly in the market. Okay, both bear and bull.
are present, and they want, like, they are fighting too much. Okay, because their positioning is such that they will get their profits only if the expiry is, because expiry is in their favor only, and we have to think like that. Okay, you can't think like कि मतलब you can't think like anything else. ठीक है, अगर ये एक्सपायरी के अलावा और कोई भी दिन होता, so you can like think of like too many things. Okay, too many things will affect the markets. But on the day of expiry, only one thing affects the market, which is how the big player will exit their position. What will be the best beneficial scenario for them? Okay, it happens on every expiry. You just have to look for it. Okay, now what happens? This was the range I had talked about. This was the range. Okay, 38 and 37.5. Now what happens? Because we faced a huge gap down opening. Okay, in the morning. Now the first thing which you have to do in case of like these kind of gap down opening, okay, that like gap up or gap down opening, because if you are not a seller, option seller, okay, because if you are an option seller, then it was a very easy job for you in the morning or like that, because the premium was very juicy and the decay was very high. Wall crash was there. I had messaged this in group also. The wall crash was very high. Okay, so the first stop was not for option buyers. Okay, and it happened like that exactly. So it was not for us. It was not meant for us option buyer, and I may say for directional trader. Okay, whether we are an option buyer or seller, this was not for. No, you will be able to monitor wall crash by seeing the premium of option. Okay, you can't monitor it by VIX. Okay, VIX is just an what can I say? VIX is just an index which monitors VIX. Okay, there is a formula for VIX. I think you have attended the webinar, Ankit. You must be knowing. We have discussed that. But the thing is, VIX, you don't have to look at VIX, or you don't have to even look at the IV also. Okay, just look at the straddle premium at the time of what is the decay happening on the ATM straddle. Okay, ATM straddle, you'll be able to find the how is the wall crash is happening, how much volatility is there. You must be noticing कि जहाँ पे भी you are buying ना, immediately after that within like 5-10 minutes, even if Nifty or Bank Nifty touches your buying price, still also your option has decayed too much. Your option has lost its value. You must be able to feel this in the live market. You will be able to. Okay, you just have to keep looking for this, and this happens. Okay, because I have discussed about this in detail. We have discussed about wicks and iv. So what happens the wicks, let's not talk about wicks, let's talk about iv, because yesterday was like a big event. FOMC meeting was there, first of all. Second thing, gap was there, one day gap. Whenever that happens, and SGXC kept running on 26, but our market was not open. Okay, and third thing was this was an event, and after any event IV decreases. Okay, the third thing was what can say, cherry on the cake was this gap down opening. Okay, all this thing led to very high wicks, very high IV when it was like opening, and after that it decreased too much. Okay, so option prices continuously decreased. Okay, so the first half was for that only. Okay, whoever has sold like today's straddle triangle, they were collecting their premium up to that. Now on the second half, okay, after this 12 p.m., the FII or they who have made their position, they started operating. Okay, now this was the thing our view was this will go up to this range. Okay, I had told you guys expiry will be in this range only. या तो if it may open, it can open gap up also, it can open gap down also, or it can open flat also. I was expecting this, but whatever will happen in the second half, the rebound will happen. Okay, so that was the thing I had discussed about it, and it is available in YouTube. You can check also. Now look at this. Okay, this was the low. Okay, and this is a clear cut level. This is a clear cut level of 37,000. Okay, look at this. This is the very clear level of 37,000, and from here Bank Nifty took the support. Okay, now this is a 5-minute chart, so you'll be able to appreciate this kind of pattern happening. And if you can add the volume, or even by looking at this
also you can see there is some kind of reversal happening. Okay, but I don't, I'll not advise you to take position at this point. Okay, I'll advise you to wait for the range to be broken. Okay, this was a big range which had formed at that point, and you can see that. Okay, just a second, let me draw this line. This is the opening range which had formed up to that point. So even if you enter at this candle, okay, I'm not talking about like if you are risky or if you are like dangerous, and if you have like if you are able to play dangerously, or if you are like if you have faith in your wheel, then you can enter here also, because the SL will be very low. Okay, SL will be very short at this point, but you can enter here also. That will be like conservative approach when this range gets broken with like with a very good candle. So you can enter here also. Now the target was 37,500, and this was the moment, guys. I am regretting it by now also. This is the one of the reason I am taking this session, because I wanted to give you the call to buy 37,500. See, I wanted to give you like this call in the Telegram group. Okay, this was trading at around 54 rupees at that point. Okay, this is the chart here. You can see this was trading at around 54 rupees at this point. Okay, you can see this is the time of that at around 1 p.m. Okay, this was trading at around that point. So but I did not give that because I thought ki wall crash was already happened, and I thought ki theta decay may erode your profits even if like for even like 15-20 minutes my call, if that does not works, then the theta decay will erode your profits. So I did not wanted to happen that, and I missed that actually. Okay, now what happened? It went from 54 to 500. Okay, this was a like I traded this. I entered at around 70 rupees. I carried like 2-3 times. Did delta dipping like that. But that was one regret which I wanted to share with you guys. So yeah, that happens. I'll talk about that also. Okay. SL for range outbreak is the like lower part of the range is the SL. High premium with slow decay. No, high premium with like whatever may be the premium. Yeah, premium must be increased because of volatility, IB, but they will decay very fastly. That was the question. Volcrest, what is Volcrest? So the thing was, they had to, they wanted their position to be in the range of like this, okay, 38 and 35. And when you have this kind of view, then you should like play on your view. Now, what is the way to play this? Okay, you should keep on trailing your SL. Once you enter at this point, let's say, once you enter at this point, your SL should be at this level, okay? Because from here, the price have returned. Now, what was the game like? Why I chose specifically 37,500? Because I was very certain that price will cross 37,500 and will remain upwards of it. Now, what happens if you like the option price? Those who have attended know this. The option price increased like this. Okay, this is the takeoff phase, which happens whenever your OTM becomes ITM. Na? Okay, whenever your OTM becomes ITM, the option price increase exponentially. You can see that in the chart of 37,500 also. So that happened, and it went up like anything. And the only way to capture this whole move was by trailing SL. I have told about this guys so many times, and those who are like a member of my Telegram channel must be knowing about this. I keep on trailing my SL, and that's the only way you can write any move. Okay, you can't predict the tops, you can't predict the bottom, but you can predict your SL. You can trail your SL. That's the only way to capture the move. Otherwise, you can't like it is not needed in the market, guys. Okay, you can't like you don't have to worry too much about कि यहाँ पे जो 3% का fall आया था. Don't have to worry too much about that also, and you don't have to worry about yesterday also. Just look at the position what big players are taking, and you can like align yourself with that. That will help you make money. And you can see कि यहाँ पे बुल्स इतने ज्यादा एग्रेसिव थे, और ये जो मूव आया था that was also expected. ठीक है, ये मूव अगर आप लोग 1 minute time frame पे if you will be able to see, then you will just look at the 1 minute time frame, you will be able to appreciate this. Okay, this was all these lines I had drawn previously also. I have not drawn you can see in yesterday's video also this line was present. Now just look at this thing. Okay, this is the exact level of 37 38. Okay, I have moved this line like slightly, but this was an exact level of 38. Okay, and from here
Bank Nifty returned. Okay, so it was expected once the 38 region breaks now, once the 38,000 region touch. So those who have sold the 38,000 calls, they will be in like in danger because of that only. So they will start like manipulating the stocks and all. Okay, and the most important tool which they used was SBI. They were using SBI to manipulate Bank Nifty, and it played very beautifully. Almost like every other bank was behaving in unison of Bank Nifty. The SBI was the only only stock which took the Bank Nifty on upward side. So that was the that that was the like analysis, guys. Using this, you can play Bank Nifty. You could have played Bank Nifty like that. Whether you are trading in futures or option buying or selling option, that's a different game altogether. That's not important. The important thing is key here, when you form a view, you should stick to it, and you should like look for the story. You should connect the dots, and the picture will unfold in front of you. Okay, no other thing, like nothing is there, zero hero or like that. Okay, nothing is needed. If you know the game, you'll be able to play. Okay. That was the one thing I wanted to discuss. Same is with Nifty also. Nifty was following Bank Nifty like that similarly. So the same thing was that. And on the day of expiry, I generally trade on Nifty and Bank Nifty only. That's why I was not concerned about any result or any other stock. So I did not give call from them also. Okay. So I think that's it. I wanted to discuss about Nifty, Bank Nifty. If you guys are having any question, we can discuss that now. Doesn't time frame does not matters. Okay, I'm getting this question too much. I will do tomorrow's analysis. Okay, I don't think there is much to analyze about tomorrow, but I'm getting this question too much nowadays. Ki, time frame about. Don't worry about time frame. Okay, see what happens. Time frame is nothing. अगर ये यहाँ से return हो रहा है, if the price is returning from 37,000, it will be shown in every time frame. Okay, you can see यहाँ पे भी also you are seeing, you even if you put 45 or also time frame also, then also you will be able to see that. ठीक है, the price should return. Okay, these are all important level which have been drawn based on price action and the OI data both. So these level, like they hold. Okay, most of the time, because price has reacted once from that level, then it's very good chances कि price will react another time also. And you can see 37,000 is a very big level. Okay, anybody who trades in Bank Nifty must be knowing that 37,000, 37,500 and 37,800 also. 37,800 also is a very good level. You can see this one. Okay. And on the last minute, I was expecting, because of averaging, it will go down, but they were falling like they averaged it using last hour up move also. So ultimately, it ended at around 37,982. Those who must be present at the live market must be knowing कि ये market जब 330 पे, it was upwards of 37, 38,100. But by averaging, it came down to that. Okay, so they have that calculation. They know how to calculate this all this thing. ठीक है, आधे घंटे में average of the last half hour, the price gets averaged. So they make their position like that only, so that they get profited. I don't know what is the weighted average, just an assumption, because exact formula I also don't know. Yes, it is weighted average price. They average the last 30 minutes. Okay. And that's their job. And we should not think too much about that, because we are not selling options at that point, at least. Okay. If you are a seller, you must be selling it the day beginning, the beginning of the day. At this point, you can only capture 1 or 2 rupees. That will not be worth your money. Okay. So we are not bothered much about that, because as an option buyer, we won't be getting much profit even with any of the option. Okay, because we are here to capture the delta, and delta was not there in the end. Yeah, but it happens in the last moment. That is the job of those big institutional bankers. How do you draw support and resistance on the basis of OI or simple price PI? PI is nothing, price action. PI must be there. Because like you said, at every time frame we can use this draw support as, but how we come to know about premium supply and demand? That's you can't know about that. You will have to look at the OI data. Then only you will be able to know where are the sellers or buyers, they are sitting at what levels. Okay.
Okay, so I think that was it, guys. ठीक है, हिंदी में I can that was because of OI data only. You can look at that and predict that. Okay. Look at the prices of premium, you will be able to understand ki how matlab they are high due to volatility. Because if the, even if the index is not moving, not moving much, okay, you can see in the first 25 minutes, index was in the range, okay, 37,200, 37, 300, इसी रेंज में था, बट द प्रीमियम वाज वर डिक्रीजिंग टू मच. ठीक है, इवन यहाँ पे जो प्रीमियम था वो अगर यहाँ पे आ जाता तो भी उतना ज्यादा मतलब प्रीमियम नहीं मिल रहा था, प्रीमियम गॉट इरोडेड like that. ठीक है, there are people who capture that wall crash and they make good money out of it. Okay, so like that, and you don't have to worry too much about that. You can just like keep on trailing your SL. You have to put your SL according to your entry price. Na? If the direction is good, you will be able to find the, if the delta is good, then it will take care of IV and Vega also and Theta also. Don't worry. Don't worry too much about wall crash. I just discussed about this because अभी उसके लिए आपको बहुत कुछ, अगर आप नए हैं तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में, अभी आप इतना मत परेशान हो. Yeah, good. SBI will touch 530. We touch. That's good. नहीं, वो आपको मार्केट में आना पड़ेगा. रुद्रा इज आस्किंग जस्ट हाईलाइट वॉल क्रैश इन वेरी शॉर्ट फॉर्म. आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस. ठीक है, वॉल क्रैश आई एम डिस्कसिंग इट अबाउट लाइक फ्रॉम मॉर्निंग इटसेल्फ. आई हैव ट्वीटेड, मतलब वो मैसेज इन द ग्रुप. यू विल बी एबल टू सी इट इन लाइव मार्केट ओनली. ठीक है, कि प्राइस आपके जो है डिक्रीज होते हैं सेम प्राइस पे आने के बाद, वॉलेटिलिटी डिक्रीज होती है तो ऑप्शन के प्रीमियम डिक्रीज होते हैं. ऑप्शन का प्रीमियम जो है बहुत सारे मतलब चीज़ों से वो होता है. जस्ट लुक एट द यस्टरडेज वीडियो गाइस, उसमें ये डिस्कस हुआ. आई थिंक आई हैव नॉट अपडेटेड द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, जो हमने चैट किया था, क्वेश्चन आंसर दिया था उसमें. विल यू गिव कॉल्स ऑन टुमारो? जॉरी नहीं है उसमें, आई कैन गिव. ठीक है, अभी उस पे मतलब if there is any call like any short call I'll give. ठीक है, mostly I try to give only short calls, and then if they are so I'll give. उसमें शायद नहीं है, आई हैव नॉट अपलोडेड द वीडियो एट Q&A जो था उसमें, बट यू विल बी एबल टू फाइंड दिस ऑल क्रेश. विल डिस्कस अबाउट इट समडे, डोंट वरी. Bank of Baroda view, what is your view? First of all, like what does you want, what is the thing that you want? Bull spread. Okay, what is the payoff? What are your break even points? And so you must be knowing ना, अगर आपने उसको इनिशिएट किया, you must be knowing that. ठीक है, डोंट ट्राई टू वैलिडेट. ठीक है, मतलब आप ज्यादा परेशान मत हुआ करो. अगर आप वंस यू आर इन द ट्रेड, ठीक है, देन यू मस्ट बी एबल टू लाइक रिएक्ट बाय द मार्केट. ठीक है, यही मैं मतलब आज मैं जो लाइव आने का, और आई वांटेड टू डिस्कस दिस ओनली कि वंस यू आर इन द ट्रेड, ठीक है, व्यू बनाना एक अलग चीज है, लेकिन मार्केट में आना और मार्केट के अकॉर्डिंगली उसको प्ले करना, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग. आपको अपना व्यू यूज करना आना चाहिए. ओके, सो दैट शुड बी इट. ठीक है, और द थिंग इज कि वी विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट मंथ. ठीक है, कल से जो है नेक्स्ट मंथ चालू होगा. सो अभी बहुत सारे जो है बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं बनी है लोगों की. ठीक है, स्पेशली जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी, वी आर नॉट एबल टू सी द बिग पोजीशन हियर. सो नेक्स्ट 1-2 days में विल बी गेटिंग द क्लियर पिक्चर कि एज ऑफ नाउ बैंक ऑफ बड़ौदा इज लाइक because the price action is bullish, okay, and the Y data is also bullish, so you must be fine. Okay, don't worry, your SL will not get hit. So you should it will remain upwards of 102 as of now. Okay, I think the Bank of Baroda result, when are the results of Bank of Baroda? I don't know, it is not showing now. Okay, so you'll be fine, don't worry. 11th Feb, no time है अभी तो.
Noted exchange between monthly versus weekly expiring. What do you think what must be the difference between weekly and monthly expiring? See, the thing is कि weekly expiry में ना जो position है, because nobody will make position from, मतलब अभी से if you have enough money and you want to make position for like say March, so you'll obviously choose the monthly expiry, March monthly expiry, na? Because that will have liquidity and you will have buyers like that. So you won't choose any specific weekly expiry. So what happens कि weekly expiry position जो है, they start building like 1 week or max 15 days or 2 weeks before. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मंथली एंड वीकली एक्सपायरिंग. तो ये जो इशू था, जैसे मैंने आज जो कल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, व्हाटएवर आई हैड डिस्कस कि बैंक निफ्टी विल एक्सपायर बिटवीन दिस एंड दिस, दैट वर्क्स वेरी फाइन विद द मंथली एक्सपायरिंग. ठीक है, अगर आज मंथली एक्सपायरिंग नहीं होता तो शायद जो है इतना अप मूव नहीं आता. ठीक है, और अगर मंथली एक्सपायरी या किसी प्रकार का एक्सपायरी नहीं होता, नॉर्मल डे होता, तो आज का डे प्रॉपर रेंज बाउंड रहता है. ये जो लास्ट का अप मूव है जो आपने देखा है, ये आपको नहीं मिलता अगर आज एक्सपायरी के अलावा और कोई भी दिन होता तो. दैट्स फॉर श्योर. ठीक है, ये जो अप मूव है, ये जो हमने कैप्चर किया है यहाँ पे, दैट वाज बिकॉज ऑफ एक्सपायरी ओनली. सो दिस थिंग हैपन. ठीक है, तो मंथली एक्सपायरी वीकली तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक्सपायरी को यू शुड रिस्पेक्ट. ठीक है, लाइक रिस्पेक्ट, बिकॉज जितना वो डिमांड करते हैं उतना आपको देना चाहिए. ठीक है, यू विल फाइंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. कल भी मैंने कहा था कि कोई ऐसा कॉल होगा या पुट होगा, कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो 10 रुपए का है, वो मतलब जाएगा 200 300 400 तक. तो जैसे ये गया था 50 रुपए का ऑप्शन 500 तक. दैट्स द बेस्ट वे टू मेक मनी. देयर इज वन क्वेश्चन. Devender is saying कि I am planning to buy premium account of Opstra or Sensible since I'll be taking your webinar in future. Can you please suggest which one I should buy? If you are planning about my webinar, then iCharts will help you like the most. ठीक है, not Opstra, not Sensible. Opstra will not definitely help. ठीक है, because Opstra is mainly for the sellers, and then also Opstra is the free version of Opstra is very powerful. Okay, Opstra is one of the site which is giving too much features in the free version itself. You can make your strategy in the free version itself. So Opstra is not useful for that, and Sensible is not much at. Sensible is like trying to be, बहुत सारी चीजें उसमें एक साथ हैं. वो Opstra और iChart दोनों को एक साथ कंबाइन करके दे आर गिविंग द फीचर्स, बट I don't find that very useful. Tomorrow result in Kotak Bank, we'll see it in live market. Okay, because result का जो प्ले है ना, वो लाइव मार्केट में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है. अगर कल आ गया तो इट्स गुड, अदरवाइज दैट्स द प्रॉब्लम गाइस. ठीक है, उतना ज्यादा अभी सोचने की जरूरत नहीं. दिस इज वन क्वेश्चन कि देयर इज ए लॉन्ग बिल्डअप इन एसबीआई एट स्ट्राइक ऑफ 550. कैन यू कंफर्म बिफोर रिजल्ट इट विल टच? ठीक है, अभी बिल्कुल नहीं सोचते उतना. ठीक है, आप लोग अभी से पोजीशन क्यों लोगे रिजल्ट के लिए? पहली बात. ठीक है, अभी से पोजीशन सिर्फ वो लेंगे जिनको डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी करनी है. दे डोंट वांट टू लुक एट द डायरेक्शंस. ठीक है, सो अगर वो लोग लेंगे तो ठीक है. आप अगर रिटेल ट्रेडर हो, आप जो है डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी करना चाहते हो, तो अभी से मत टच करो, ना एसबीआई को ना किसी चीज को, क्योंकि रिजल्ट के पहले वो और मैनिपुलेट होगा. मैंने आपको बताया ना, या फोर्थ बहुत टाइम है अभी. ठीक है, दैट्स बहुत टाइम है अभी. डोंट वरी, अभी 27 है, यहाँ पे मिनट में काम चला है. देखो, यही तो प्रॉब्लम है ना. डोंट वरी टू मच ना. आप ये समझो कि जो 50 रुपए का ऑप्शन 500 रुपए गया, उसमें से आपने कितना कैप्चर किया है? अंकित इज हियर. अंकित हैड एंटर्ड दैट एट 35 रुपीज. तो अंकित, यू शुड कैलकुलेट कि 35 से दैट वेंट अप टू 500 रुपीज और 500 रुपीज. सो आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना हो जाता? ठीक है, तो यू शुड नॉट थिंक. और ये भी नहीं है कि अभी से आप जो है एसबीआई का व्यू बनाओगे या किसी भी चीज का व्यू बनाओगे तो वो आपको बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा. नहीं, वो उसी दिन प्ले होगा, उस आधे घंटे में प्ले करके यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. ठीक है, डोंट वरी. अभी एसबीआई बहुत मैनिपुलेट होगा रिजल्ट के पहले, और मैनिपुलेट होगा. जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता उसके पहले तो एक्चुअली बजट भी आ जाएगा ना. तो फिर बजट के लिए भी कोई अलग से भी व्यू की जरूरत नहीं है. बजट इस बार जो है 4 बजे के बाद आने वाला, 4 बजे के अराउंड आने वाला है. मार्केट आवर्स में नहीं आएगा तो बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा. बस ये होगा कि बिकॉज वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो प्रीमियम बढ़ेंगे उस दिन. सो वी कैन मेक टेक प्रॉफिट ऑफ दैट. ठीक है, अगर थोड़े डायरेक्शन हमारा सही हो गया तो बहुत प्रॉफिट मिलेगा बजट वाले दिन. अगले दिन कुछ नहीं करना है, बजट के अगले दिन एज एन ऑप्शन बायर फॉर अस. वर्ल क्रैश उस दिन भी होगा. आई डोंट प्रिफर एनी वन. ठीक है, मैं तो सब में ट्रेड करूंगा, जो जो जिसमें भी मुझे मतलब मिलेगा मैं उस पर ट्रेड करूंगा.
नहीं सर, चेंज हो गया है जिग्नेश जी। इस बार आप देखेंगे बजट जो है अलग अलग सदन में, चैम्बर्स में अलग अलग टाइम पे वो होगा, उसको देखिएगा, न्यूज़ है उस पर। सो देयर इज वन क्वेश्चन कि डिक्सन स्टार डॉक्टर रेड्डी रिजल्ट विच डू यू प्रिफर, जिसमें ट्रेड बनेगा उस पर ट्रेड करेंगे। होल्डिंग को लेके क्वेरी है, अगर एफएनओ है तो मैं बता पाऊंगा, नहीं है तो फिर देखते हैं, बताइए, पूछोगे। व्हाट इज योर क्वेश्चन, यू आर होल्डिंग टू स्टॉक्स। एसबीआई कार्ड इन दाल भारत, बोथ आर गुड स्टॉक्स, ठीक है। तो यू आर होल्डिंग विथ लाइक क्या पर्पस के साथ, ठीक है। सी बिकॉज वी आर हियर एट, सो इन्वेस्टिंग, यू गाइस मस्ट बी नोइंग ना कि जो, मतलब मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टिंग इज आल्सो ट्रेडिंग इन लॉन्गर टाइम फ्रेम, ओके। सो देयर मस्ट बी सम टारगेट, ठीक है, एंड मस्ट बी सम एसएल, ठीक है, वो चीजें रहनी चाहिए आपकी, चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। आई हैव सीन द स्क्रीनशॉट लाइक पीपल हैव eroded their 40%, 50%, even 80% capital, like on investing itself. So investing in not a safe haven, ठीक है। और जिस पर्पज से अगर आपने लिया है कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे आप, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए, सो दे बोथ आर गुड स्टॉक, सो यू कैन होल्ड देम। और अगर मीडियम टर्म के लिए स्विंग या फिर उसके लिए सोच रहे हो, तो यू शुड पुट योर एसएल अकॉर्डिंग टू योर एंट्री प्राइस, ठीक है। वट एवर वॉज द एंट्री, यू शुड टेक वन लेवल बिलो दैट and you can put your SL like that. Let's say बैंक निफ्टी इज अराउंड रेजिस्टेंट, तो आपका जब बाइंग प्राइस आएगा तो उसमें निकल जाना ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपके पास इतने सारे स्टॉक हैं, जबरदस्ती होल्ड करने की जरूरत नहीं किसी भी स्टॉक को। इन्वेस्टमेंट का देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोग आप में से इन्वेस्टर हो गए और बहुत सारे लोग लास्ट ईयर इन्वेस्टर बने हैं, ठीक है, दैट्स अ गुड पॉइंट, उस पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो बाइंग प्राइस के नीचे आप अगर स्टॉक्स में बाय किए हो, आपने कैश में बाय किया है, तो आप तो कभी भी निकल सकते हो ना। जैसे कोई सा भी स्टॉक है, कोई सा भी स्टॉक उठा लो, अगर वो नीचे जा रहा है तो आप उसको निकल जाओ ना, आप उसको होल्ड क्यों करके रखते हो, मुझे ये नहीं समझ में आता। बिकॉज ऑप्शन में वी हैव एन ऑब्लिगेशन, ठीक है, ऑप्शन में हमने थोड़ा सा है कि एसएल नीचे लगाएंगे, या डेरिवेटिव में किसी भी ट्रेड कर रहे हो, आपने ऑप्शन सेल किया है तो आपको थीटा डीके का प्रॉफिट मिल जाएगा, आपने बाय किया है तो आपको डेल्टा का प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन कैश में क्या प्रॉफिट मिलेगा आपको ज्यादा होल्ड करके, ठीक है। तो सिंपल चीज आप करो ना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो चीजों को, यू शुड नॉट कॉम्प्लेक्स एनीथिंग, ठीक है। इवन आई एम डूइंग द ऑप्शन ऑप्शन बाइंग बहुत इजी तरीके से कर रहे हैं, तो फिर इन्वेस्टमेंट तो बहुत आसान होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये तो रिजल्ट आया था, इसको छोड़ दें, किसी भी स्टॉक को ले लो, इवन लेट्स से कोफोर्स आपने बाय किया है, ये इसका भी रिजल्ट आया था, रिजल्ट वाले स्टॉक तो अलग ही, तो आपने जैसे जुबिलेंट फूड को बाय किया, ठीक है, एंड योर बाइंग प्राइस इज लाइक 3400। आप अगर यहाँ पे एक काम करना, आई हैव डिस्कस्ड इन वन ऑफ द आंसर्स फ्यू डेज बैक, जस्ट पुट एन ट्रिगर एट, पुट एन अलार्म एट alert at यहाँ पे, just put an alert, ठीक है। You can put that, you can put in Zerodha also, you can put in Sensible also, they that all the things are available। जैसे ही ये ट्रिगर होगा आप एग्जिट हो जाना वहां से, जस्ट गो टू योर Zerodha ऐप और वट एवर ऐप यू आर यूजिंग, वट एवर ब्रोकर यू आर यूजिंग, यहाँ पे एग्जिट होना, जब ये वापस रिटर्न होती यहाँ पे आएगा या कहीं पे भी यू विल बी गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, तो वहाँ पे यू कैन एंटर, ओके। डोंट गेट टू मच अबाउट विथ योर स्टॉक्स, ठीक है, क्योंकि अभी तो यू गाइस हैव सीन द बुल रन, you have to, you are still to see, yet to see the like sideways market and the bearish market, you are yet to see, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एवरेजिंग वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर नहीं जा रहा है विद इन, मतलब 4-5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, आपकी बाइंग प्राइस से नीचे जा रहा है, 1-2% नीचे ही है, तो यू कैन एग्जिट, वेट कर लो, बाद में एंट्री कर देना। डोंट कॉम्प्लिकेट द थिंग्स गाइस, ठीक है। यहाँ पे यू कैन सी एकदम हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ है, चांसेस है कि और नीचे जा सकते हैं रिजल्ट के बाद। खैर वो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द रिजल्ट। सो आई थिंक दैट्स क्लियर है ना, उस पे यू शुड थिंक। वाई आईटी सेक्टर इज गोइंग डाउन इवन आफ्टर गुड रिजल्ट, रिजल्ट से किसी भी ऑप्शन या किसी भी स्टॉक के प्राइस का कोई रिलेशन नहीं होता उनका, दैट्स ए लाइक बेटर ट्रूथ, ये आपको समझना पड़ेगा। रिजल्ट को उन्हीं को रीड करना है। देखते देखते पोर्टफोलियो बड़ा हो गया है, किसका पोर्टफोलियो। सो रिजल्ट से उन्हीं को फायदा होता, मतलब रिजल्ट को उनको ही रीड करना होता है कि रिजल्ट कैसा है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ठीक है। इफ यू आर होल्डिंग दैट, आपका बहुत बड़ा चंक उस पे है, आपके इन्वेस्टमेंट पे, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा चंक किसी स्टॉक पे है, तो आप जैसे आपने अगर होल्ड किया होगा किसी स्टॉक का, तो यू मस्ट बी गेटिंग द एसएमएस फ्रॉम दैट कंपनी आल्सो एंड एसबीआई सेबी आल्सो,
यू मस्ट बी गेटिंग दैट लाइक एसएमएस कि वहाँ पे आज रिजल्ट है इसका और कौन कॉल है, आप सुनिए। तो आप अगर प्रॉपर अगर इन्वेस्टमेंट में जा रहे हो तो यू शुड लाइक दैट, ठीक है। आपको उनका कॉन कॉल सुनना चाहिए, आपको कंपनी का वर्क पैटर्न सब देखना चाहिए, रिजल्ट भी देखना चाहिए, ठीक है। वो है अगर आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली प्राइस विल फैक्टर इन एवरीथिंग। बट इफ यू आर इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर लाइक 4-6 महीने 1 साल के लिए यू आर डूइंग, सो रिजल्ट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर द लाइक गुड स्टॉक एट चीप प्राइसेस, ठीक है। जितने भी आईटी स्टॉक हैं अभी कितने लो प्राइस पे मिल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आईटी स्टॉक्स अच्छे हैं, आई एम नॉट लाइक आई एम नॉट गिविंग एनी व्यू और लाइक दैट, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है आईटी स्टॉक अच्छे हैं तो दैट्स अ गुड टाइम, ठीक है। ये बहुत नीचे लेवल पे आ चुका है एनपी, किसी भी स्टॉक को ले लो आप, टीसीएस को ले लो, तो ये जो चीजें हैं ये दे आर एट लाइक गुड प्राइस। सो अभी ये रिजल्ट के बाद ये फॉल डाउन होना चालू है, सो दे विल कीप ऑन फॉलिंग, ठीक है। और उसके बाद फिर से अकुमुलेशन चालू होगा, द ऑपरेटर्स विल अकुमुलेट दी स्टॉक्स अगेन एंड दे विल लाइक टेक दिस अप, ठीक है। अगर फंडामेंटल सही है या बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में तो इट विल गो अप अगेन, ठीक है। एक जैसे लेट्स से मैं थोड़ी का एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो ये रिजल्ट के बाद ये डाउन हुआ था, यहाँ से ये स्टॉक इसका रिजल्ट आया उसके बाद ये डाउन हुआ, कंसोलिडेट किया, अगेन वापस ले गए ऊपर, अब फिर रिजल्ट आएगा तो हो सकता है फिर नीचे ले आए या फिर ऊपर भी ले जा सकते हैं, वो रिजल्ट के दिन डिपेंड करेगा। सो उस पर उस दिन का डेटा देखना पड़ेगा, बट दिस थिंग्स हैपन, ओके। तो यहाँ पे ला करके फिर इन्होंने एक्यूमुलेट किया क्वांटिटी, फिर ऊपर ले गए, क्योंकि 3-4 महीने में 3 महीने में तो रिजल्ट आ जाता है, तो फिर से उनका प्ले उनके लिए 3 महीने कुछ नहीं है, ठीक है, बिकॉज दे आर हैविंग डीप पॉकेट्स, दे कैन ट्रेड फॉर लॉन्गर टाइम्स। अभी तो और जहाँ और जैसे वीकली एक्सपायरी की तो ज्यादा रिटेलर्स आएंगे ना, ज्यादा लोग इंटरेस्ट होगा, लिक्विडिटी जब बढ़ेगी तो वीकली एक्सपायरी में भी पोजीशनिंग उसी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों को पता होगा अभी निफ्टी आईटी निफ्टी फाइनेंस, ठीक है, निफ्टी फिन जो है वो ट्रेड हो रहा था, अभी उसके अलावा निफ्टी मिड कैप भी ट्रेड होने लग गया है, उसका एक्सपायरी जो है ट्यूसडे को है। सो अगर लिक्विडिटी बढ़ती है तो दीज थिंग विल गेट सक्सेस, अदरवाइज नॉट। There's one question, sir. I have observed one thing. Let's say Bank Nifty is around resistance of 37,500 when it gave the breakout. Option prices should increase to Bank Nifty chart, but option decreased 10-15 seconds earlier than index. नहीं है, ऐसा नहीं है, वो वॉलेटिलिटी की वजह से थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वो आपके ट्रेडिंग व्यू और उस पे वजह से भी हो सकता है, आपको देखने में लगेगा वो डिक्रीज नहीं। ऑप्शंस इंक्रीज 10-15 सेकंड अर्लियर देन, हाँ वो तो होता है ना, तो वो ऑब्वियसली मतलब बहुत ज्यादा लोग होते हैं। नहीं, आई हैव नॉट ट्रेडेड मिड कैप येट एंड आई डोंट थिंक आई विल बी ट्रेडिंग दैट। मैं बस बता रहा था कि वॉलेटिलिटी मतलब वॉल्यूम बढ़ेंगे तो फिर चीजें ये भी प्ले में आ सकती हैं, उसमें भी बहुत कम वॉल्यूम है। सो या अर्लियर हो जाता है इंडेक्स के थोड़ा पहले, डेफिनेटली ये चीज़ तो होती है, ठीक है। आई कैन रिलेट टू दैट। हेड रेट की अर्लियर नहीं होता है, अर्लियर होता है, अर्लियर थोड़ा पहले प्राइस मूव करने लग जाते हैं ऑप्शंस के। सो उस पे ये है कि वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है ना, उस रेंज को ब्रेक होने के पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करने लग जाते हैं जो सेलर्स होते हैं अपने, तो इसलिए उनकी उस वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ती है और आपका डेल्टा भी उसका उस वक्त काम करता है, तो जो डेल्टा टेक ऑफ होता है बिकॉज ऑफ दैट द प्राइसेस गेट्स इंक्रीज। और ऑप्शंस में आपका ये है कि बाय हाई एंड सेल हायर। Okay, so I don't. I think I have answered all the queries. So, any more queries you can ask, guys. अरे तो आई आंसर दिस ना, एसएन यू आर रिपीटिंग योर क्वेश्चन, आई वाज आंसरिंग योर क्वेश्चन ओनली। यू आर आस्किंग कि 10-15 सेकेंड्स अर्लियर जो है आपका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो वो आई आई नो दैट एंड दैट इज आई आंसर्ड दैट, ठीक है, वो होता है एंड वो मतलब पोजीशंस स्क्वायर ऑफ होते हैं और वॉलेटिलिटी बढ़ती है उसकी वजह से जो है बढ़ता है।
Do you have any paid channel or session so that we can join? I don't have any paid channel yet, ठीक है, because I, मतलब अब मैं क्या बोलूँ, क्यों नहीं है आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन है अभी तो सिर्फ वेबिनार का ही है। लेकिन एक, हाँ, आई एम प्लानिंग, एक डिस्कशन होना चाहिए। आई एम प्लानिंग कि ग्रुप होना चाहिए जिसपे, yesterday also there were demands like that, ठीक है, अगर 1 AM 11 AM है तो दैट्स गुड, ठीक है। नहीं, आई हैड सीन सम न्यूज, आई डोंट नो एग्जैक्टली, वो आएगा जिस दिन पता चल जाएगा, उसके पहले पता चल जाएगा, डोंट वरी टू मच अबाउट बजट, ठीक है। आई वाज गेटिंग सर द क्वेश्चंस, ठीक है। ये सारे इवेंट्स पे आप लोग ज्यादा ध्यान मत दिया करो, ठीक है, उस पे ये मत सोचो, जो आपके व्यूज हैं उस पे पैसा बनने की नहीं, उस पे ज्यादा ध्यान दिया करो, ठीक है। एंड आई वाज सेइंग, व्हाट आई वाज सेइंग, या हाँ, आई वाज गेटिंग ए रिक्वेस्ट फॉर डिस्कशन ग्रुप, सो वो होना चाहिए, ठीक है। आई विल बी, लाइक एक डिस्कशन ग्रुप होगा जिसपे विल बी डिस्कसिंग लाइक प्लान फॉर नेक्स्ट डे एंड व्हाट हैपन टुडे, और क्या कर सकते थे, थोड़ा पर्सनल अटेंशन रहेगा वहाँ पे। और आई एम प्लानिंग कि वो डेली डिस्कशन ग्रुप रहेगा, ठीक है। उस पर डेली वी कैन डिस्कस एंड एवरीथिंग, उस पर बताते हैं। तो उस पे विल, वी कैन यू गाइस आल्सो कैन शेयर योर आइडियाज एंड आई विल बी गिविंग माय इनपुट्स, एंड देन आई विल शेयर माय आइडियाज टू ट्रेड द नेक्स्ट डे, ठीक है। और लाइव मार्केट में भी थोड़ा बहुत हेल्प, इफ आई कैन डू दैट, I'll share my ideas, ठीक है, based on like stocks then Nifty, Bank Nifty both, ठीक है, ऑप्शन बाइंग के ऊपर में रहेगा। सो वी कैन, आई एम प्लानिंग दैट, ठीक है, हो सकता है 1-2 दिन में फाइनलाइज हो जाए। सो हाउ इज द आइडिया गाइस, ठीक है, आप लोग को क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए डिस्कशन ग्रुप? अरे वाह बहुत सारे लोगों की यश आ गए। आई एम प्लानिंग, मैं चाह रहा हूँ ना, मैं एक्चुअली कल तो मैं इसलिए आ गया कि लाइव, क्योंकि कल छुट्टी थी और आज मंथली एक्सपायरी था। अब आज इसलिए आ गया क्योंकि मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता था अपने व्यूअर्स को, क्योंकि मैंने कल वो सिनेरियो एक्सप्लेन नहीं किया था कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा तो क्या करना है, इस सेट की फ्लैट ओपनिंग होगी तो ये करना है। अब वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट आई थॉट कि यू गाइज, मतलब बहुत लोगों का पैसा तो बना है, बट आई थॉट कि ये चीज रोज की जा सकती है, इस पे आई विल ऑल्सो गेट ए पुश, ठीक है, कि मुझे भी रोज आइडिया जनरेट करने पड़ेंगे, मुझे भी लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, मुझे भी अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि मैंने कल ये बोला था, आज मार्केट में ये हुआ तो ये करना था, अब कल ये कर सकते हैं, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। एक ऐसा डिस्कशन हो तो अच्छा लगता है, मैं भी मतलब ये चाह रहा था, इससे भी मेरी भी अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, बिकॉज आई एम फ्री नॉट डेज, ठीक है, वेबिनार तो कंप्लीट हो गया है, सो आई एम फ्री, मतलब वीकेंड्स में भी आई एम फ्री, सो आई एम थिंकिंग ऑफ दिस, ठीक है। सो आई विल प्लान दिस एंड आई अनाउंस इट वेरी सुन, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली एक वन फर्स्ट फेब से पहले इसको कंसेप्टलाइज करके आई विल प्लान दिस, ठीक है। थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस ही रहेगा गाइस, है ना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि एफर्ट्स ज़्यादा दूँ इस पर, क्योंकि वेबिनार से ज़्यादा एफर्ट लगेगा इसमें, वेबिनार तो कुछ नहीं है, वो कंटेंट प्रिपेयर्ड है, मैं उसको कभी भी वीकेंड्स में ले लेता हूँ, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस पर डेली बेसिस पे वो रहेगा। हाँ मिनिमम तो गाइस ऐसा है कि जो मैं जो भी कंटेंट बताऊंगा, देयर इज वन क्वेरी कि सर एनी प्लान फॉर प्रीमियम सर्विस विद मिनिमम अमाउंट पर मंथ सो दैट वी कैन ट्रेड कॉन्फिडेंटली अलोंग विथ यू। मार्केट आवर्स में तो मैं अकेले ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, वैसे भी मैं डिस्कशन तो होता ही रहेगा, लेट्स सी, देखते हैं थोड़ा सा, लेट आई एम स्टिल ये टू कंसेप्चुअलाइज दिस, ठीक है, बट आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस, ठीक है। मुझे बहुत क्वेरी तब से आ रही है उसके ले लेकर के, पेड चैनल स्टार्ट करने के लेकर के, तो पेड चैनल में अभी स्टार्ट नहीं करना चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि अभी थोड़ा सा लर्निंग करें, ठीक है, अर्निंग तो कभी भी कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा लर्निंग करें और समझें चीज़ों को, फिर एक बार समझ जाएंगे तो पैसा, मतलब आप जैसे आपने देखा ना, ये मूव के दम पे आप जो है अगर 5,000 बना सकते हो तो आप 50,000 भी बना सकते हो, 5 लाख भी बना सकते हो, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। और व्यू आपका सही होना चाहिए। वेबिनार एस्टिमेट डेट सर, वेबिनार का जो नेक्स्ट सेशन है वो फैब में होगा, 15 फैब के अराउंड पे वी कैन प्लान, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि इतनी क्वेरीज आएंगी, बट आई एम गेटिंग सो मेनी क्वेरीज, ठीक है, ऑन डेली बेसिस पे, मतलब अभी भी मेरे टेली ट्विटर पे आई हैव नॉट येट रिस्पॉन्डेड, बट देयर वर 3-4 मैसेजेस कि सर वेबिनार कब है करके। और अच्छा, एक और वन थिंग मोर गाइस, कि वो जो थ्रेड है जिसपे मतलब मेरे वेबिनार के बारे में बताया गया है, वो जेन्युइन थ्रेड है, मैंने मैंने कोई पेड वेड थ्रेड नहीं है, वो एक सब्सक्राइबर का ही है, वेबिनार अटेंडीज का ही है,
उन्होंने लिखा है उसको, और मैंने किसी को बोला भी नहीं था लिखने के लिए, आई जस्ट इन्फॉर्म किया, मैंने ट्वीट किया, आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो, तो उन्होंने खुद से अपना थ्रेड ही बना दिया। सो थैंक यू टू हिम एंड थैंक यू ऑल आल्सो। नहीं नहीं, डोंट वरी, अफोर्डेबल तो सर ऐसा है, मार्केट में जितने दूसरे लोग हैं ना उन सबसे कम ही प्राइस रहेगी, ये बात आप समझिए। ठीक है, और जितना प्राइस मैं लेता हूँ वो मैं, मेरी इतनी कैपेसिटी है कि सर एक दिन का मैं कॉल में ना आपको वो पैसा रिटर्न कर सकता हूँ, उसका आप चिंता मत करो। ठीक है, छोटे छोटे कॉल में मैं देना पसंद नहीं करता एक्चुअली, जिनका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं रहता और जिनको देख के वाव फैक्टर नहीं आता ना, मैं वैसे कॉल देना नहीं चाहता, इसलिए मैं नहीं देता। अदरवाइज 2 दिन से तो ये हालत थी, आप देख रहे हो बैंक निफ्टी निफ्टी कितना, मतलब इतना डायरेक्शनल ट्रेड किया है, मैं कॉल नहीं दे रहा था, लेकिन आप चाहो तो आराम से ट्रेड कर सकते थे बैंक निफ्टी निफ्टी पे, पिछले 2-3 दिन से जो मार्केट है। ठीक है, मैंने जो ट्रेड लिया, अगर सेम चीज मैं आपको दे देता तो आप लोग को मतलब आसानी से हो जाता, लेकिन मैं नहीं दिया क्योंकि वही मैं चाहता था कि एकदम जो रहता है, मतलब जो SCL टेक में आपने जैसे देखा है, LTTS में देखा है, और जो 10 रुपए के 20 रुपए के जो SL वाले कॉल्स रहते हैं वो आप लोगों ने, मैं नहीं चाहता कि नॉर्मल, मतलब जो चीज़ें आपको नॉर्मल फ्री मार्केट में मिल सकती हैं, आप ट्विटर पे आप मतलब देख लो, है ना, मैं आई एम ऑल्सो यूजर ऑफ ट्विटर एंड टेलीग्राम ऑल्सो, आई एम सीइंग कि व्हाट अदर गाइज आर डूइंग, अदर पीपल्स आर डूइंग, सो आई डोंट वांट टू लाइक कॉपी एनी अदर्स। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ आपको दूसरी जगह से मिल जा रही है वो मैं खुद क्यों प्रोवाइड करूँ। ठीक है, उस टाइप के सिंपल कॉल्स तो कोई भी दे सकता है। ठीक है, 100 रुपए का कॉल बैक करो, 120-30 रुपये टारगेट हिट हो गया, यू कैन एग्जिट, तो वो सब चीज़ें नहीं मजा आएगा ना, उसमें पैसा नहीं बनता। Ready? ठीक है, देयर वाज फ्यू क्वेश्चंस गाइड मैं गाइस, मैं उसको अभी, शुड न्यू ट्रेडर फोकस, शुड न्यू ट्रेडर ओनली फोकस ऑन इंडेक्स ऑप्शन, नहीं बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, ओनली न्यू ट्रेडर शुड फोकस ऑन स्टॉक्स ओनली। ठीक है, स्टॉक्स में आपको बहुत सारी चीजें, मतलब यू कैन लर्न फ्रॉम स्टॉक्स। ठीक है, आप अगर इंडेक्स पे आओगे तो इंडेक्स इज द लास्ट गेम, ठीक है, इंडेक्स इज द एंड पॉइंट, और स्पेशली बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी इज द मतलब बैंक निफ्टी क्या बोलूं, मोस्ट डेंजरस इंस्ट्रूमेंट आउट देयर। ठीक है, ये बाकी चीजें तो बाद में मतलब अपना काम करती है, बैंक निफ्टी तो एक दिन में ही जो है, इसके अंदर कैपेसिटी है कि आपका जो है पूरा कैपिटल इरोड कर सकती है। तो अगर आप न्यू है, बिगनर है, तो प्लीज डोंट थिंक अबाउट लाइक इंडेक्स में। ठीक है, जो एक्सपीरियंस्ड है उन लोगों को पता होगा ये बात। ओके, देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस गाइस। आप बिजनेस मत अरे नहीं नहीं, सबका अपना अपना बिजनेस है, चलता रहे, उनका भी बिजनेस चलता रहे, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही प्रॉब्लम है guys, थोड़ा रीच का प्रॉब्लम है। ठीक है, आई एम गेट, मतलब आई एम न्यू, मैं मेरे से ही मैंने ट्वीट, आई एम ट्रेडर तो मैं पुराना हूँ, लेकिन मैंने ट्वीट वगैरह करना, मैं US मस्ट बी नोइंग कि मैंने स्टार्ट ही इसीलिए किया था, आई वाज जस्ट लॉगिंग माय ओन व्यूज। ठीक है, ट्विटर पे रहता है तो तुरंत चार्ट देखने में अच्छा लगता था, और शुरू शुरू में आप में से कुछ लोग अभी भी हैं इस वेबिनार में जिन्होंने शुरू से ही बहुत इनकरेज किया, लाइक वाइक किया, तो फिर आई स्टार्टेड लाइक रेगुलरली ट्वीट वगैरह करना, अदरवाइज आई वाज नॉट इनटू दिस स्पेस। ठीक है, इसीलिए मैं अभी तक मैंने जो पेड चैनल स्टार्ट नहीं किया ना, वो इसीलिए क्योंकि मुझे नहीं अभी तक मतलब अंदर से कॉलिंग नहीं है, बिकॉज आई वांट टू, जैसे वेबिनार भी लेता हूँ तो उसमें ये चीज़ रहती है कि मैं खुद उन कंसेप्ट को रिवाइज करता हूँ, एक अच्छा रिवीजन हो जाता है मेरा भी, और आप लोगों का भी हेल्प हो जाता है, और इतने अच्छे अच्छे अब तो बहुत एनकरेजमेंट मिलने लगे, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आने लग गए। सो इसलिए अब वो एक फील गुड फैक्टर है, और प्राइस तो अलग है, वो तो है, लेकिन ये जो चीज़ है, अरे नहीं नहीं नहीं, एफ टू एफ के अभी कहाँ वो आया था विवेक सर का एक दिन मैसेज आया था, जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि उन्होंने कांटेक्ट किया था, बट आई एम येट, मतलब आई डोंट थिंक कि अभी मैं उसके लिए आई एम रेडी और लाइक दैट। नहीं नहीं, विवेक बजाज सर को अपना काम करना है। अरे सब अपना अपना काम कर रहे हैं, आपको ये समझना है। ठीक है, एज ए रिटेल ट्रेडर ना, देखो ऐसा नहीं है, दोनों चीजें हैं, देर इज वन व्यू। ठीक है, लोगों को ये लगता है कि जितने भी ट्रेनर हैं वो गलत है, ऐसा नहीं है यार। देखो हम भाई ऑब्वियसली स्कूल में भी टीचर्स नहीं पढ़ाया, तभी तो यहाँ पे बैठे हैं, पहली बात। दूसरी चीज ये है, या देर आर फ्यू ट्रेनर्स हु आर नॉट जेन्युइन एंड, और वो लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं शो करते हैं। ठीक है, मेरे केस में अकाउंटेबिलिटी, मैं वेबिनार भी लेता हूँ तो उसमें ये रहता है कि एक दिन का अगर कंटेंट आपको पसंद नहीं आ रहा है, मेरा तरीका नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आप जो है वापस ले सकते हो पैसा, आई विल गिव। ठीक है, अभी तक किसी ने ऐसा किया नहीं, लेकिन ऐसा आई कैन, मतलब आई विल गिव। ठीक है, तो ये चीज़ है। और
तो अब बस वही है, बहुत लोग अकाउंटेबिलिटी शो नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसलिए रिटेलर्स को बड़ा प्रॉब्लम होता है, और कई लोग आउट एंड आउट फेक भी होते हैं, तो वो भी है ना, क्योंकि ये फ्री मीडियम है ना गाइस, बिकॉज व्हेन यू आर हैव सम फॉलोअर्स यू कैन टेक एनीथिंग। जैसे आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ही आपने लोगों का देखा होगा, मतलब लोगों का ये ट्वीट आता है, आई थिंक बैंक निफ्टी विल नॉट गो बिलो दिस लेवल, आई थिंक द टॉप हैज फॉर्म्ड हियर, आई थिंक द बॉटम हैज फॉर्म्ड हियर, आई थिंक दिस इज बाय ऑन डिप्स। अभी परसों जब बैंक निफ्टी 3 2.5 3% टूटा था, तो उस दिन जो है सब लोग मतलब दे वर क्राइंग लाइक दैट, ठीक है, अभी कल ऊपर आ गया तो सब चेंज हो गए। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आपका व्यू है तो उस व्यू के ऊपर स्टिक होना चाहिए, और लाइक दैट, ठीक है, वो चीज थोड़ी रेयर है, तो आई एम थिंकिंग ऑफ दैट, फिलिंग दैट गैप। देयर वाज वन क्वेश्चन, आई थिंक आई मिस दैट, ठीक है। हाउ एसबीआई अलोन वाज एबल टू रिवर्स बैंक निफ्टी फ्रॉम बेरिश टू बेरिश? एसबीआई का 12.5% का कंट्रीब्यूशन है, और 12.5% बहुत होता है, ठीक है, सो यू कैन सी, देख लो, है ना, एक बार मैनिपुलेशन होता है उससे, आई डोंट नो वेयर इट इज। एसबीआई ने वो मूव स्टार्ट किया था, ठीक है, जब बाकी बैंक न्यूट्रल थे तब एसबीआई ने वो स्टार्ट किया था, बाद में फिर एवरीबडी जॉइन दैट, ठीक है। सो स्टार्टिंग में जो चीजें बदली थी वो एसबीआई के इस मूव की वजह से बदली थी, तब जो है एचडीएफसी वाज एट अराउंड 1440 लेवल, ठीक है, और उसके बाद एवरी स्टॉक स्टार्टेड टू मूव, ठीक है। यू कैन सी एसबीआई जो है यहाँ से इतना बड़ा मूव दे चुका था, एसबीआई गेव दैट मूव फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, यू कैन सी 12:15 से लेकर के इट गेव मूव अप टू 1, और एचडीएफसी में मूव स्टार्टेड आफ्टर 1, है ना, एंड लुक एट दिस ऑल्सो आफ्टर 1 p.m., ठीक है, एक्सिस ऑल्सो स्टार्टेड मूव आफ्टर 1 p.m. इवन आईसीआईसीआई आईसीआईसीआई में तो बहुत बड़ा कुछ मूव आया ही नहीं है, ये मूव आया है ये आफ्टर 2 p.m. केम। तो एसबीआई showed this move and this was a very good move, you can see here this was a very good move, है ना, ये छोटा मोटा मूव नहीं था, अगर आप इसको if you can look at this, ठीक है, you can see the volumes here 1.5 million 1.2 million, ठीक है, this kind of volume was getting generated in SBI, and that's a very good number, so SBI has the capacity, ठीक है, कि to manipulate bank nifty, okay। नहीं, आई डोंट हैव लाइक, मैं क्या मतलब बेसिक्स, ऑप्शन बाय सेल कैसे करते हैं वो बेसिक आप कहीं भी देख सकते हो, है ना, लेकिन उसका प्रॉपर मेथड तो उसमें टाइम लगता है, आई टीच दैट इन द वेबिनार। और कोई क्वेश्चन था, व्हेन विल बी द नेक्स्ट जूम सेशन लाइक दैट? वो फ्राइडे, फ्राइडे नहीं, फ्राइडे तो कल है, वीकेंड्स में एक दिन और कर सकते हैं, ठीक है, आई विल बी कंडक्टिंग वन, उसमें सारे स्टॉक्स जितने भी स्टॉक्स होंगे उसके बारे में भी बताऊंगा आपको, जो भी आप लोग पूछोगे। अभी एक कल तक में पोजीशन भी क्लियर हो जाएगी ऑपरेटर्स की, तो उसके बाद वी कैन, I had answered ना, SN is saying कि my query is why option move earlier than actual index price, I have answered that, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ऐसा नहीं है, ऑप्शन आर नॉट टू मच लिंक टू द डेरिवेटिव, दे आर जस्ट डिपेंड ऑन द डेरिवेटिव, एक ही पार्ट है उसका, उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे ऑप्शन का प्राइस डिसाइड होता है, तो वो फैक्टर जो है पहले मूव करा देते हैं। एनी रफ एस्टिमेट व्हेन द नेक्स्ट, आई हैव आंसर्ड, ठीक है, 10-15 Feb के अराउंड पे वी कैन प्लान। अच्छा हाँ, देयर वाज वन क्वेश्चन आई फॉरगॉट दिस, ठीक है सर, ड्यू टू इलिक्विडिटी इन ऑप्शंस बाइंग वी डोंट गेट एग्जैक्ट प्राइस एज पर द स्क्रीन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, इसको मैं आंसर करता हूँ। बिफोर दैट सर, हैव यू गॉट एसबीआई इन द स्क्रीनर और वर यू वाचिंग? आप निफ्टी बैंक निफ्टी में 5 ही तो आपके कंस्ट्रूमेंट है बैंक निफ्टी में, सो यू शुड लुक कंटिन्यूअसली ऑन दोस थिंग, ठीक है। How can you predict next day gap up or gap down on stocks in your calls in last week? That's why I'm asking if possible please explain। वो YouTube वीडियो में पॉसिबल नहीं है सर, वो 4 दिन लगते हैं उसको समझाने में, जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया होगा उनको पता होगा कि उस लास्ट पॉइंट को समझते समझते कि कल गैप अप होगा कि नहीं, 4 दिन का पूरा मेहनत हो जाता है सर, ठीक है, तो इसलिए। और हाँ, एसबीआई की बात है ना, तो ये आई वाज सेइंग कि ये जो चीज है ये मेरा टाइम, मतलब ये विंडो खुला रहता है, इस पे आई की कीप ऑन वॉचिंग, ठीक है, तो यहाँ पे अचानक से एसबीआई वाज मूविंग, एसबीआई शुरू से ही मेरे रेडार पे था एक्चुअली, मैं आप लोगों को बोला भी था एसबीआई का, ठीक है, शुरू से ही मेरे रेडार पे था, इसका जो मूव आ रहा था ना उसके बेसिस बैंक निफ्टी
मूव कर रहा था। तो यू कैन कंपेयर दैट, ठीक है। एक पैनल ये रहता है जिसमें HDFC, ICICI, SBI और एक्सिस, या फिर कोटक, ठीक है, एक्सिस की जगह पे समटाइम्स कोटक। ये सारे स्टॉक्स रहते हैं, इनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है बैंक निफ्टी में इफ यू वांट टू ट्रेड। नाउ आई वाज गोइंग टू आंसर, व्हाट वाज आई गोइंग टू, अच्छा हाँ, आई वाज थिंकिंग एक्चुअल प्राइस से डिफरेंट रहता है। सो उसमें द इशू इज कि लेट्स गो टू द PPT। उस पे द प्रॉब्लम इज कि या हियर इट इज। सो द एक्चुअल प्राइस, और जो मतलब प्राइस रहता है ना, तो आप जो प्राइस टिकर पे देखते हो वट एवर यू आर ट्रेडिंग, लाइक लेट से कि आप कोई ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक ऑप्शन की बात जैसे कर लेते हैं, ठीक है। इफ यू आर ट्रेडिंग एनी लाइक ACC का ही कोई ऑप्शन है, ठीक, किसी भी स्टॉक है XYZ, ठीक है, तो वहां पे सपोज कोई भी कॉल है या पुट है, दैट इज ट्रेडिंग एट, जो भी यहाँ पे उसका प्राइस दिखेगा ना आपको, एक्सपायरी का डेट रहेगा और स्ट्राइक प्राइस रहेगा, उसका जो भी यहाँ पे प्राइस रहेगा, वो जो रहता है वो आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस रहता है। सपोज एनी ऑप्शन इज ट्रेडिंग, बायर इज सेइंग कि आई विल बाय एट 12 रुपीज एंड द सेलर इज सेइंग कि आई विल सेल एट 14 रुपीज। एंड इफ यू कम टू द इक्वेशन एंड यू थिंक कि नहीं, दिस स्टॉक इज गोइंग टू XYZ, दिस स्टॉक इज गोइंग टू shoot up immediately, so you may be think this is call option, so you will think कि नहीं, I want to join the party and I want to like buy this thing। सो आप इमीडिएटली आते हो और जो जो भी सेलर की प्राइस रहती है उस पर यू कीप द ऑर्डर, ठीक है। आप 14 पे ऑर्डर लगा देते हो, फिर वो आप जो है आपको मिल जाता है ये ऑप्शन। या फिर यू कैन डू वन थिंग कि जस्ट पुट योर ऑर्डर एट लाइक लेट्स से यू गो टू द मार्केट एंड यू से कि नहीं, मैं 14 पे तो बाय नहीं करूंगा, लेकिन इस पे भी नहीं करूंगा, इससे कम भी नहीं जाऊंगा, बिकॉज ही इज ऑलरेडी ट्राइंग टू बाय एट 12 रुपीज। तो अगर मैं उससे कम प्राइस देता हूँ, मान लो मैं 11 या 11.5 लिखता हूँ यहाँ पे, so it my order will not get executed before him, so he will take this call। so मैंने जो है फिर I went to the market and I put the order at 12.5 या 13, ठीक है। तो 13 पे मैंने ऑर्डर लगाया, 13.5 पे ऑर्डर लगाया, तो वो इट मे बी पॉसिबल कि अगला इंसान जो है he may see कि नहीं 13 पे I can sell, ठीक है, तो he will sell। on all this thing happen, let's say कि एक एक सेकंड में your tick gets updated, ठीक है, what is the price here and what is the price here, that all gets updated in 1 second। एक सेकंड के अगर बीच में ऑर्डर लग जाता है तो you won't even see that, and your last rate price will change, ठीक है। someone let's say comes and buys at 13 rupees and somebody sells at 13 rupees, तो यहाँ पे last rate price 30 rupees दिखाने लग जाएगा। so whenever the like the essence of this whole discussion was कि you have to look at the buying price and the selling price, ठीक है, bid and ask। you have to look at that कि अगर आप जैसे बाय करना चाहते हो तो you will get the at 14, and if you want to sell immediately now, जैसे आपके पास ऑलरेडी है, if you want to sell then you will get the price 12 rupees। okay, that's the difference between buying and selling price। so this is called the spread, ठीक है, spread or arbitrage। so sometimes this happens, and if the spread is very big, ठीक है, let's say कि यहाँ पे 12 rupees की जगह 8 rupees या 10 rupees है, the spread is very good, very big, that means कि the option is illiquid and you should avoid that trading on that stock or option for that point। you can trade on cash or anything like that, but please avoid the spread big, the big spreads, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा रहेगा तो यू विल नॉट गेट। मैं तो बोला ना, मार्केट प्राइस पे बाय और सेल नहीं होते, मैं उसके एक स्टेप आगे का बता रहा हूँ अंकित, ठीक है। लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। मार्केट ऑर्डर पे अगर लगा देगा ना जीरोधा, तो आपको इमिडिएटली 3-4 हज़ार का लॉस हो जाएगा एक लॉट में, ठीक है। अगर आप मार्केट ऑर्डर अलाउ कर देगा जीरोधा, आप मार्केट ऑर्डर लगा दो, ठीक है, यहाँ पे जैसे, तो अगला इंसान ना तुरंत आएगा जिसके इसके पहले की 14 का ऑर्डर लगे ना, यहाँ पे सपोज गैप है 12 और 14 का, आपने मार्केट ऑर्डर लगा दिया। मार्केट ऑर्डर का मतलब ये रहता है कि आपको उसको बाय करना ही है, चाहे कितने में भी मिले। सो आप तुरंत इमिडिएटली यहाँ पे एक एल्गो आएगा और आपका उस एक सेकंड में ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो उसके पहले कोई आ जाएगा, वो आपको जो है 20 रुपीज में बेच देगा और आप उसको खरीद लोगे क्योंकि आपने मार्केट ऑर्डर लगाया हुआ है, ठीक है। वो चीज होगी और उसके बाद फिर आपका लॉस ऑलरेडी यहाँ पे 8 रुपए का लॉस होगा। 8 रुपए मीन्स कि अगर 1000 का लॉट साइज है ना, तो 8000 का लॉस इमीडिएटली हो जाएगा। ओके, सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ये प्रॉब्लम है, इसीलिए जो है नहीं करते हैं।
सो आई थिंक दैट्स क्लियर गाइस, है ना, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अच्छा, मेरा हो गया था इंडिगो के साथ, ये होता है, ये प्रॉब्लम है। ये लाइव मार्केट में आप जब कल जाओगे ना तो इस चीज को ऑब्जर्व करना, ये आपको दिखेगा, ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि क्यों होता है ना। एक बार और समझा दूंगा बाद में। ग्रो में हो जाता है तो मत किया करो उससे, ठीक है, किसी से हो जाता है तो मत किया करो, ग्रो या किसी भी मतलब ब्रोकर से होता है। कभी भी मार्केट ऑर्डर नहीं लगाना। मार्केट ऑर्डर सिर्फ इंडाइसेस में लगा सकते हैं कि उसमें लिक्विडिटी इतनी ज्यादा होती है कि आप जो भी प्राइस देख रहे हो उस पर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन किसी और में नहीं होगा ये चीज। ठीक है, तो आपको एक दिन इतना लॉस हो जाएगा कि आप मतलब बिलीव नहीं कर पाओगे। आपको आज 37,500 या आई डोंट नो किसका 37,000 का या किसी का तो था फ्री ट्रेड, उसमें भी हुआ है आज या कल की बात है, आई डोंट नो। तो उसमें मार्केट ऑर्डर किसी ने लगा दिया होगा और इमीडिएटली एल्गोस रहते हैं, उन्होंने बहुत बड़े प्राइस पे सेल कर दिया, तो उसको इमीडिएटली जो है इस पे लोगों का लाखों तक का लॉस हुआ है। ठीक है, हिस्ट्री आप उठा के देखोगे तो विद इन 4-5 महीने पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। बहुत लॉस होता था लोगों का। नहीं, इट्स अप टू यू गैस, है ना, वो आपको करना है कि आप कौन सा ऑर्डर लगाते हो। ठीक है, वो उनका काम है सर्विस प्रोवाइड करना, ये आपका काम है उसको ठीक से यूटिलाइज करना। सर, यू मेंशन्ड अबाउट एसबीआई वीकेंड वीडियो एंड इट हैपेंड, आई सडनली थॉट रिजल्ट्स वर पोस्टपोन। नहीं, वो हो गया था। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, है ना। कल के लिए मैं अभी कोई व्यू नहीं दे रहा, ठीक है, नॉट मच व्यू, क्योंकि पोजीशनिंग भी नहीं है, जस्ट चेक, ठीक है, बहुत ज़्यादा पोजीशनिंग भी नहीं किसी की। तो ओपनिंग के बेसिस पे डिसाइड करेंगे, जो भी पोजीशन होगा मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को बता दूंगा कल जब आएगा मार्केट ओपन होगा तो उसके, क्योंकि मंथली एक्सपायरी अभी जस्ट फिनिश हुई है और अभी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आने वाली है, तो बहुत बड़े प्लेयर्स ने भी बहुत ज़्यादा पोजीशन क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, दैट्स ए ट्रूथ। आप लोग भी बहुत ज़्यादा मत करो, है ना, कैपिटल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा थोड़े दिन। अब अभी के जो 2-4 दिन है ना, ये बनाने के नहीं, बचाने के दिन है, उसके बाद फिर बना सकते हैं। ठीक है, तो कल जो ओपनिंग होगी उसके हिसाब से डिसाइड कर लेंगे, अभी बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंजॉय द नाइट गाइस, है ना। मैं मेन मेरा वही था कि जो व्यू है बैंक निफ्टी का, उसके बेसिस उसको किस तरीके से प्ले करना है, आई वांटेड टू गिव दैट। ओके, इसलिए आई कंडक्ट दिस, ठीक है, और उस पर भी ओपिनियन लेना था हम लोगों का। ये जो चारों में इस टाइप का ग्रुप बनाने का एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करते हैं 1-2 महीने के लिए, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है, हम लोगों को कैसा लगता है। आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट। ठीक है, कॉल देना बहुत आसान काम है, कॉल पे आई डोंट बिलीव, है ना, वो कोई भी दे सकता है। ठीक है, आप खुद भी दे सकते हो, आपको भी पता होगा कि कॉल मतलब एसएल का यूज करके आप डीप एसएल लगा लो, 1:2 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड में भी कई लोग कॉल दे देते हैं, तो वो तो आप भी जनरेट कर सकते हो ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत बड़ा काम नहीं है, वो करेंगे, जब करेंगे तो फिर बहुत अच्छे से करेंगे उसको भी, लेकिन अभी फिलहाल अभी डिस्कशन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, और आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स और रिव्यू सुन के तो फिर थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस नाइट, थैंक यू।